Hello guys, welcome to the channel, and first of all I would like to thank all of the viewers who have given a lot of positive comments and positive responses. However, I know there are some drawbacks, also some downsides, but we'll definitely cover them up within a few time period only. Okay, so coming to today's video, in this video we will discuss about the writing task 1. We have covered the pie chart and the map in our previous videos, but today we are going to cover a line chart. So in as writing task 1, the line chart is quite tricky one. It is a bit interesting topic because we have a lot of words, a lot of vocabulary for writing a task 1, like pinnacle of the pyramid, acme point, zenith point, bottommost point, nadir point, or you can say fluctuation, roller coaster ride. A lot of interesting words are there which we can use to make our writing task 1 line chart more interesting and more attractive to the reader. So today we'll use some line chart which is showing a very straightforward figure in which we can't use these type of vocabulary. So I'll give you a trick so that you can write these type of line charts in which the lines or the trends are very slanting or they are just showing one motion only. You can write these all the tasks in very interesting way with this step that is going to be shared in the video. So first of all, if we come to the figures, how can we use some attractive comparison techniques to make our figures explanation look more attractive? First of all, we can use the adjective as well as adverb clauses. By adjective we means the words like dramatic, enormous, slight, small. Okay, and on the adverb side there are many adverbs like dramatically, slowly, gradually, promptly, drastically, enormously. These all type of things can be used in our writing task 1 to make our sentences look more interesting. They show our grammatical range to our reader. So try to use these type of words in your writing task 1 so that your task 1 sentences may look more fabulous. Okay, so one more thing, in our writing task 1 line chart we know that some values are always mentioned in the scale where the calibration of data is done. You can say on the left side of the टास्क, हमारा जो लाइन चार्ट होता है उसके लेफ्ट पे जो वैल्यूज़ दी होती है ना वो जैसे 10 से स्टार्ट हो रही हैं, 20 पे आ रही है, नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट 30 पे है ना, तो हम क्या करते हैं उनके मिडल में जो वैल्यू लाई करते हैं ना हम उसको खुद अज्यूम कर लेते हैं. लेकिन जैसे कि 20 से अगर 30 में है कोई वैल्यू तो हम उसे लिख देते हैं 25 है, 26 है ना. सो स्टॉप राइटिंग दीज थिंग्स. Instead of these things you can write some other interesting words, because when we assume the values by ourselves only, that makes that we are giving our interpretation कि हम खुद से assume करके दे रहे हैं उसकी value. Why? Because in task 1 we cannot share any of our interpretation. So stop writing and stop assuming these kinds of things in your writing task. Okay, rather than this we can use any other kind of adjective or adverb, that like approximately, roughly, circa, circa, which means roughly, or you can say near about, around, about, approximately. These words can be used. Or you can say lower than this value, higher than this value, above or below this value. These all words should be used rather than using our own assumptions about the value. Some more figures like just a half of the other value. ठीक है, ऐसी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं. लाइक यू कैन से दिस वैल्यू डबल्ड आफ्टर दिस टाइम पीरियड. डबल्ड एक अच्छी फिगर है ना. एंड वन मोर थिंग, जब भी हम ये डबल, ट्रिपल ये चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो कंपैरिजन की जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना जिसका हम डबल बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ वी से बी बिकेम डबल ऑफ ए की फिर वैल्यू भी बताओ वहाँ पे. अगर आप वैल्यू नहीं बता रहे तो रीडर को कैसे पता लगेगा कि ए की वैल्यू कितनी थी और बी उसका डबल होके कितना हो गया. सो कीप इन माइंड, ऑलवेज क्लैरिफाई योर वैल्यूज़ वेरी प्रिसाइजली व्हेनेवर यू राइट अ टास्क 1. ओके, सो
उसकी तरह हम डबल, ट्रिपल और यू कैन से ट्रेबल, TREBLED, ट्रेबल्ड, ये सारे वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं. अबाउट 3 times, रफली दिस मच, अबाउट अ थर्ड, अप्रॉक्सीमेटली 1 in 3, far more or far less. These all things can be used to make comparison in our writing task 1. उसके बाद अगर हम देखें आज का हमारा टॉपिक, सो द ग्राफ बिलो शोज पॉपुलेशन फिगर्स फॉर इंडिया एंड चाइना सिंस द ईयर 2000 एंड प्रेडिक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ अप अंटिल 2050. सो इट इज़ अ क्वाइट इंटरेस्टिंग टास्क बिकॉज हमें पहले तो क्या गिवन है कि इंडिया और चाइना में पॉपुलेशन की फिगर्स फॉर 2000 और उसके बाद प्रोडिक्शन गिवन है कि 2050 में उनकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी. सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी गो टू द ग्रामर, इसमें 2 टाइप ऑफ ग्रामर्स यूज़ हो रही हैं. फर्स्ट पास्ट टेंस, नेक्स्ट इज़ द फ्यूचर टेंस. हम जो 2000 से पहले वाली वैल्यूज़ हैं सारी हम किस में बताएंगे, इन आवर पास्ट टेंस. हम जो 2000 वाली सारी वैल्यूज़ हैं हमें पास्ट में बताएंगे और उसके बाद जो उसकी प्रेडिक्शन है 2050 तक वो हम किस में बताएंगे, इन द फ्यूचर टेंस. तो फ्यूचर के लिए सिर्फ विल वुड नहीं यूज़ कर सकते, उसमें आप अलग अलग सेंटेंस फॉर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इज़ गोइंग टू सब्जेक्ट प्लस इज़ गोइंग टू वर्ब 1. ठीक है, जैसे कि दिस थिंग इज़ गोइंग टू इंक्रीज और यू कैन से डिक्रीज. और इसके साथ साथ दिस थिंग इज़ प्रेडिक्टेड टू, इज़ प्रेडिक्टेड टू भी है एक सेंटेंस की वेरिएशन है जो आप यूज़ कर सकते हो. प्रेडिक्टेड को रिमूव करके उसके सिनोनिम्स ऐड कर लो. इट इज़ एनविसेज्ड टू, इट इज़ एंटिसिपेटेड टू, इट इज़ ऑब्जर्व्ड टू. ओके, सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स हम टास्क 1 में यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टेटिंग द फ्यूचर टेंस. उसके बाद ग्रामर की एक और मिस्टेक आती है, जैसे अगर हम सब्जेक्ट देखें, इसमें हमारा टास्क में क्या सब्जेक्ट बन रहा है, पॉपुलेशन फिगर्स फॉर इंडिया और यू कैन से पॉपुलेशन फिगर्स फॉर चाइना. बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, इंडिया विल इंक्रीज टू दिस. इंडिया कहाँ से इंक्रीज कर जाएगा, तो वहाँ पे आपका जो सेंटेंस है ना वो पूरा का पूरा गलत जाएगा. सो सेंटेंस क्या बनेगा, पॉपुलेशन इन इंडिया, not India. It will be population in India. The population in India will grow or fall down, or you can say the population in India is going to increase or decrease. हम ये नहीं बोलेंगे कि द इंडिया इज़ गोइंग टू इंक्रीज़. इंडिया कहाँ से इंक्रीज़ कर रहा है, तो कीप इन माइंड आप अपना जो सब्जेक्ट है अपने राइटिंग टास्क 1 में वो क्लेरिफिकली लिखो वहाँ पे. ये नहीं है कि आप सब्जेक्ट को खुद ही चेंज करी जा रहे हो. ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें हमारा जो टास्क है वो क्या बता रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया और चाइना की 2 लाइंस हैं. द ब्लू वन इज़ फॉर इंडिया वेयर एज द पर्पल वन इज़ फॉर चाइना. उसके बाद अगर हम इसमें कैलिब्रेशंस देखें, पॉपुलेशन हमें किस में गिवन है, फिगर्स इन बिलियंस. ओके, एंड ईयर्स है हमें 10 ईयर का गैप है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, अ डिकेड और यू कैन से 10 ईयर्स, अ टेन्योर ऑफ 10 ईयर्स. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन देखें क्या बन सकती है कि द ग्राफ शोज हाउ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड चाइना हैव चेंज्ड सिंस 2000, कि 2000 से आज तक प्रेजेंट टाइम तक कितनी चेंजेस आए हैं एंड हाउ दे विल चेंज इन द फ्यूचर. तो यहाँ पे हाउ जो है वो एक रिलेटिव क्लॉज है. हम रिलेटिव क्लॉजेस आपको पहले भी बता चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियोस कि हम ये रिलेटिव क्लॉजेस अपने टास्क में यूज़ कर सकते हैं. दे गिव अस एन एक्स्ट्रा मार्क. ओके, सो इसकी इंट्रोडक्शन होगी. नेक्स्ट अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आप एक काम करो, जैसे यहाँ पे 2 टेंसेज है ना, रादर दैन मिक्सिंग बोथ ऑफ द सेंटेंसेस आप जो पास्ट की वैल्यूज़ हैं वो पहले बता दो, उसके बाद जो फ्यूचर का प्रेडिक्शन है ना वो आप सेकंड बीपी में बता दो एंड लास्ट बीपी वुड बी फॉर द ओवरऑल और यू कैन से ओवरव्यू. इसकी कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है. अगर आप चाहते हो बीपी 1 से पहले ओवरऑल लिखना तो वो भी करेक्ट है. अगर आप बीपी 2 के बाद लास्ट पे ओवरऑल लिखना चाहते हो दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड. देयर इज़ नो स्पेसिफिक स्पेस फॉर राइटिंग एन ओवरऑल. ये कोई कंडीशन नहीं है कि ओवरऑल बीपी 1 से पहले ही लिखना है या ओवरऑल बीपी 2 के बाद ही लिखना है. इट इज़ एज़ पर योर विश. कुछ लोगों को लगता है कि वो
BP1 से पहले स्ट्राइकिंग फिगर्स बताना पसंद करते हैं एंड द अदर पीपल आर ऑफ द अपोजिट व्यू कि वो BP2 के बाद लास्ट पे सबसे अच्छी बात करना चाहते हैं, ठीक है। बट कीप इन माइंड कि जो बात आप ओवरऑल में कर रहे हो दैट शुड बी एनी डिफरेंट टॉपिक, वो ये नहीं है कहीं और रिपीट हो रहा है, ठीक है। आपका जो ओवरव्यू है वो कभी भी आपके BP से कहीं भी कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, इट शुड शो सम स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट। ओके, सो कमिंग टू द BP1 ऑफ दिस टास्क, हम इसके BP1 में क्या लिख सकते हैं। इन 2000 देयर वर मोर पीपल लिविंग इन चाइना दैन इन इंडिया। सो दिस इज़ अ सेंटेंस वेरिएशन, इसे बोलते हैं सेंटेंस वेरिएशन। ये हमारे ग्रामेटिकल रेंज को एक्सप्रेस करता है कि हमारे पास ग्रामेटिकल रेंज है। हमने पहले कंपेयर किया कि मोर पीपल लिविंग, मोर इज़ द एडजेक्टिव एंड पीपल इज़ द नाउन हेयर, कि पीपल जो थे चाइना में इंडिया के मुकाबले ज़्यादा थे। दैन की जगह हम एज कम्पेयर टू भी यूज़ कर सकते थे, और यू कैन से इन कंटेक्स्ट टू चाइना, इन कंटेक्स्ट टू इंडिया। उसके बाद द नंबर ऑफ चाइनीज़ वॉज 1.25 बिलियन। चाइनीज़, पीपल ऑफ चाइना, उसे क्या लिख सकते हैं हम, चाइनीज़। द नंबर ऑफ चाइनीज़ वॉज 1.25 बिलियन वाइल इंडियाज़ पॉपुलेशन वॉज अबाउट 1 मिलियन। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे थी, जस्ट लाइंग बिटवीन 1 बिलियन, ठीक है। अबाउट 1 बिलियन, हमने अबाउट 1 बिलियन लिखा है, हमने ये नहीं लिखा कि वो अगर 1000 और 1.1 बिलियन के सेंटर में लाई कर रहा है तो हम उसे खुद 1 पॉइंट समथिंग बिलियन, 1.05 बिलियन लिख रहे हैं। वाई, दे हैव नॉट टोल्ड अस। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट इस सेंटेंस में क्या था, हमने वाइल यूज़ किया था। तो सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, सेंटेंस में वाइल यूज़ करो जो कंपैरिजन बताता है दो चीज़ों में। नेक्स्ट, बिटवीन 2000 एंड द प्रेजेंट, इसमें क्या हम बता रहे हैं, 2020 तक का, सिंस दिस ईयर, प्रेजेंट ईयर इज़ 2019, सो हम अब किस ईयर तक का डाटा बताएंगे अपने, 2020 तक का। बिटवीन 2000 एंड द प्रेजेंट, हम प्रेजेंट लिखेंगे, हम ये नहीं मेंशन करेंगे 2019। इट इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि प्रेजेंट ईयर ही लिखना है, आप उससे अच्छा प्रेजेंट लिखो, ठीक है, या फिर करंट ईयर। देयर हैज़ बीन अ 0.2 बिलियन राइज इन द नंबर ऑफ इंडियन सिटीजन्स। हैज़ बीन हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो चेंज हो चुका है आज तक, ठीक है। सो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हुआ कि इंडियन पीपल में 0.2 बिलियन का इंक्रीज़ आया, वो 1.1 बिलियन से 1.2 बिलियन पे चला गया ओवर द सेम पीरियड। मतलब सेम 2000 से और आज तक क्या हुआ है, चाइनाज़ पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 0.1 बिलियन टू रीच ओवर 1.35 बिलियन। तो हमने क्या लिखा है, इट हैज़ रीच्ड ओवर 1.35 बिलियन। हमने ये नहीं लिखा कि इट इज़ लाइंग बिटवीन इट हैज़ बिकम 1.35 बिलियन, ठीक है। हमने खुद नहीं अज्यूम किया, हमने बताया कि वो 1.35 बिलियन से आगे चला गया, खुद नहीं वैल्यू कोई अज्यूम की। सो ये बात अपने दिमाग में रखिए आप कि कभी भी खुद वैल्यू नहीं अज्यूम करनी, कि अगर वो 10-20 के बीच लाई करिए तो उसे 15 लिख दो। नेवर डू दिस ब्लंडर इन योर टास्क। उसके बाद सेकेंड VPs का, इसमें हम फ्यूचर की बात करेंगे तो आप विल यूज़ कर सकते हो, वुड यूज़ कर सकते हो, इज़ प्रेडिक्टेड टू, और यू कैन से इज़ गोइंग टू, ठीक है, ओके, और यू कैन से इट विल बी सीन एट दिस पॉइंट, ओके। सो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ द पॉपुलेशन इन इंडिया विल इंक्रीज मोर क्विकली दैन इन इंडिया, ठीक है, यहाँ पे भी हमने कंपैरिजन कर दिया। एंड एक्सपर्ट्स से दैट बाय 2030 बोथ कंट्रीज़ विल हैव द सेम पॉपुलेशन ऑफ 1.45 बिलियन। हमने बता दिया कि 2030 में इनकी पॉपुलेशन सेम हो जाएगी, रिजेंबल करेगी, आइडेंटिकल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1.35 बिलियन। उसके बाद नेक्स्ट ऑनवर्ड्स, आफ्टर दिस चाइनाज़ पॉपुलेशन इज़ लाइकली टू फॉल, बताया था ना, इज़ प्रेडिक्टेड टू, तो वहीं पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, इज़ लाइकली टू फॉल स्लाइटली टू 1.4 बिलियन। स्लाइटली टू 1.4, हमने ये नहीं लिखा कि वो 1.45 हो जाएगी, ठीक है। इट विल फॉल स्लाइटली टू 1.4 बिलियन इन 2050 while India's population will probably increase and reach 1.6 billion. So done.
हमने इसमें सारा एक्सप्लेन कर दिया कि इस ईयर में क्या क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नाउ कमिंग टू द ओवरऑल, thus over 50-year period India is going to experience steady growth in its population and it will overtake China. On the other hand, China's population will peak in 2030 and then begin to फॉल। तो सबसे स्ट्राइकिंग जो ट्रेंड्स हैं, इन शॉर्ट जो लाइन चार्ट के ट्रेंड्स होते हैं ना, जैसे किस टाइम पीरियड में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही हैं या फिर कब कोई चीज़ किसी दूसरी को ओवरटेक कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप ये बातें ओवरऑल में लिखा करो रादर दैन आप अपने बीपीज़ में ये मिसमैचिंग करते हो, बिकॉज ये थोड़ी सी स्ट्राइकिंग थिंग्स होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। सो ट्राई टू राइट दैम इन योर ओवरऑल रादर दैन राइटिंग दैम इन योर बीपीज़, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट आंसर। तो आप ऐसे ही अटेम्प्ट कीजिए, इसमें स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, दैट इज़ गुड फॉर कोहेरेंस एंड कोहेजन। ग्रामेटिकल रेंज यूज़ हो रही है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है, लेक्सिकल रिसोर्सेज भी हैं, वोकेबलरीज में जैसे पहले हमने पीपल लिविंग इन चाइना, उसके बाद चाइनीज़, उसी तरह पीपल लिविंग इन इंडिया, इंडियन सिटीजन्स, ये सारी चीज़ें लेक्सिकल रिसोर्सेज वोकैब में काउंट होती हैं रादर दैन कि आप इस लाइन चार्ट को पॉली लाइन चार्ट लिख रहे हो। इन बातों के आपको कोई बैंड नहीं मिलने वाले हैं, ओके। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इसके ओवरऑल में दोनों चीज़ों को कवर किया जा रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ हम मैक्सिमम मिनिमम बता रहे हैं, हम पूरी चीज़ों को हम अपने पूरे टाइम पीरियड में जो पूरे दोनों ट्रेंड्स हैं दोनों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ट्रेंड्स ज़्यादा है ना, तो आप उसमें जस्ट एक वर्ड एज ऐड कर दो, एज़ कम्पेयर टू all others. This is more than sufficient to make your overall look proficient. अपने ओवरऑल को गुड बनाने के लिए ना उसमें एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर्स करो, क्योंकि जितनी देर तक हम अपने ओवरऑल में कंपैरिजन नहीं ना करते वो ओवरऑल अच्छा नहीं माना जाएगा, ओके। सो आई होप यू ऑल गाइज लाइक दिस वीडियो एंड